ایسا جہاد بنا کر پیش کیا گیا کہ جس کی قیادت خود نبی پاک کر رہے تھے۔ 1966 میں لکھے گئے ممتاز مفتی کے ایک مضمون کے اقتباسات ملاحظہ کیجئے۔ پھر جنگ چھڑ گئی، بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا، عجیب و غریب نوعیت کی خبریں آنے لگیں۔ یہ خبریں مافوق الفطرت عنصر سے بھری ہوئی تھیں۔ حضور اعلیٰ سرور دو عالم عجلت میں گھوڑے پر سوار ہو کر پاکستان کے جہاد میں شامل ہونے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ جنگ بدر کے شہداء محاذوں پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین سفید ملبوسات پہنے سیالکوٹ کے قرب و جوار میں محاذ کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے۔ ایک محاذ کے بھارتی قیدی کا بیان تھا کہ سفید پیرہن والی پاکستانی فوج بھارتیوں کو تہس نہس کر رہی تھی، ان کی تلواروں سے شعلے نکل رہے تھے۔ دوسرے قیدی کا بیان تھا کہ سرخ ٹوپیوں اور چھوٹے قد والے پاکستانی فوجیوں نے بھارتی سینا کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ بھارتی توپچی نے کہا، گولے پھینکنا بیکار ہے۔ ایک سفید ریش بڈھا میرے گولے کیچ کر کے پرے پھینک دیتا تھا۔ بھارتی ہوابازوں کا بیان تھا کہ جب وہ گولے پھینکتے تھے تو سفید ریش بڈھے انہیں ہاتھوں میں پکڑ کر زمین پر یوں رکھ دیتے تھے کہ وہ پھٹتے نہ تھے۔ اس جنگ نے پاکستان کے مہمے کو از سر نو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب مجھ میں اس بات کو رد کرنے کی ہمت نہ رہی جسے میں عقل کے ذریعے سمجھ نہیں سکتا تھا۔ جنگ کے دوران کے مافوق الفطرت واقعات نے پاکستان کی خاص حیثیت پر مہر لگا دی تھی۔ اب میرا اللہ سفید گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لمبی زنگ آلود تلوار تھی۔ وہ پاکستان کے محاذوں پر گشت کر رہا تھا اور اس کا چہرہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اندازہ کریں کہ کس طرح تصوف اور کرامات کے پردے میں پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اور خرق عادت کا سیاسی استعمال ہو رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے نبی پاک اور صحابہ تک کو بطور فکشنل کریکٹر استعمال کرنے سے دریغ نہیں کیا گیا۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جنہیں ایک عرصے تک پاکستان میں ایبسولوٹ ریئلٹی سمجھا جاتا تھا اور کوئی ان پر سوال نہیں کرتا تھا، لیکن آج کل ان باتوں پر کیسے ری ایکٹ کیا جاتا ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ 1965 تک بم پکڑتے تھے نا، ان کے مزارات پہ آگے بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد۔ جو بندہ ڈائیں مار کے کیش پکڑتا تھا راوی کے پل کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں ایسے کیش پکڑا کے گئے دہشت گرد، 55 بندے وہاں پہ شہید ہو گئے۔ 1970 میں قدرت اللہ شہاب نے بیوروکریسی کی ملازمت چھوڑ دی اور یونیسکو کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ انٹرنیشنل جاب ملتے ہی ان کا روحانی کردار بھی انٹرنیشنل ہو گیا۔ یونیسکو کے کہنے پر انہوں نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا۔ اس ٹور کی کہانی تو ایسی سنسنی خیز ہے کہ آپ امیر حمزہ اور عمرو عیار کی جنات کے ساتھ الف لیلوی لڑائیوں کو بھول جائیں گے۔ بظاہر شہاب کا اسرائیل ٹور یونیسکو کی اما پر تھا، لیکن اس دورے کا اصل مقصد مسجد اقصی میں بیٹھ کر اسرائیل کے خلاف کوئی جادوئی عمل کرنا تھا۔ لیکن اسرائیلی راہبوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ کوئی شخص مسجد اقصی میں ایسا عمل کر گیا ہے جو اسرائیل کے لیے تباہی کا باعث ہوگا، اس لیے اسرائیلی جادو قدرت اللہ کے خلاف حرکت میں آ گیا۔ اسرائیل سے واپسی کے بعد ایک دن شہاب کو ایک جھنڈے والی کالی گاڑی میں لفٹ دی گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر شہاب کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے شہاب کو ایک انجیکشن لگایا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے اور انہیں اگلے دن ہسپتال میں ہوش آیا۔ لیکن اس کے بعد اگلے 2 سال تک شہاب صہیونی جادو کے عذاب میں مبتلا رہا۔ شہاب کی بیگم ڈاکٹر عفت کو شہاب کی الماری سے شراب کی خالی بوتلیں ملنے لگیں۔ شہاب چارپائی پر لاش کی طرح پڑا رہتا۔ ڈاکٹر عفت کے دل میں شک پیدا ہونے لگا۔ شہاب کی ہڈیوں پر ہتھوڑے چلتے رہے، اس کے جوڑوں میں مخیں ٹھکتی رہیں، لوگوں کو اس کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ بس میں بیٹھتا تو لوگ ناک پر رومال رکھ لیتے۔ یہ واقعہ قدرت اللہ کی زندگی کا المناک ترین واقعہ تھا۔ اسرائیلی جادو کی وجہ سے جب وہ وطن واپس لوٹا تو وہ آدھا آدمی تھا، اور اسرائیلی جادو کی وجہ سے ہی ڈاکٹر عفت فوت ہوئیں۔ یہ سب باتیں شہاب نے ایک لیٹر میں ممتاز مفتی کو بتائیں۔ اس لیٹر کی فوٹو مفتی نے الکھ نگری میں بھی شیئر کی ہے۔ شہاب لکھتے ہیں، پیارے ممتاز، آپ کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر اسرائیل چلا گیا تھا۔ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہودیوں کے ہاروتی ماروتی جادو نے مجھے بری طرح دبوچ لیا۔ مجھے بہت سے اچھے اور برے روحانی تجربے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہولناک تجربہ بملا کی روح کا تھا، لیکن وہ تو ایک مری ہوئی مظلوم لڑکی کی چیخو پکار تھی جو صرف یہ چاہتی تھی کہ اس کی ہڈیوں کو اس کے اپنے دھرم کے مطابق سپرد آتش کر دیا جائے۔
लेकिन अब के तो मुझ गरीब का वास्ता सेहूनियत के उस जिंदा इफरीत से पड़ा जो सारी दुनिया पर किसी न किसी तरह छाया हुआ है। जो कुछ मुझ पे गुजरी है वो कौन सुने और सुनाए। मेरे गोश्त पोस्त का रेशा रेशा मकड़ी के जाले की तरह बार बार बनने और टूटने लगा। मेरे तन बदन में मेरी हड्डी को सड़क के पत्थर तोड़ने वाले मजदूर खटाखट तोड़ते गए। इफ़्फ़त मुझे मशकूक नजरों से देखती। फिर एक दिन जब शहाब ने खुदकुशी का सोच करके अल्लाह से दुआ की तो फिर कहीं जाके उन्हें इस जादू से निजात मिली। इस खत में कुदरतुल्लाह शहाब ने बिमला की रूह का जिक्र किया है। अब जरा इस वाक़े की भी तफसील सुन लें। शहाबनामे का एक चैप्टर बिमला कुमारी की बेचैन रूह के नाम से है। ये 1943 की बात है जब शहाब का ट्रांसफर उड़ीसा के इलाके कटक में हो गया और सिविल लाइंस की कोठी नंबर 18 उनके नाम अलॉट हो गई। इस कोठी में उनके साथ जिन्नाती वाकयात पेश आना शुरू हुए। रात के वक्त उनके कमरे की लाइटें खुद ब खुद जलने और बुझने लगती। कभी नलके के पानी से खून आने लगता, कभी उनका टेबल हवा में बुलंद हो जाता, कभी कमरे में पत्थरों और ईंटों की बारिश होना शुरू हो जाती और कभी कमरे में मुर्दार हड्डियां बरसने लगती। एक मर्तबा हड्डियों का ढांचा डाकिया बनकर उनके बेडरूम के बाहर आ गया। जब वो अपने ग्रामोफोन पे सहगल के गाने लगाते तो उससे अजीबो गरीब खौफनाक आवाजें आने लगती और फिर जब वो कागज पर कलिमा तैयबा लिखकर ग्रामोफोन पर रखते तो आवाजें बंद हो जाती और गाना बजने लगता। फिर जब शहाब ने रिसर्च की तो इन सब वाकयात के पीछे की स्टोरी सामने आई। हुआ यूं था कि 18-20 साल पहले इस घर में एक उबाश अफसर रहता था जिसने एक स्टूडेंट बिमला कुमारी को वरगला के अपने साथ रख लिया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने बिमला को कत्ल कर दिया और लाश को उसी घर में दफन कर दिया। फाइनली शहाब ने उस जगह को खोदकर बिमला की हड्डियां रिकवर की और उन्हें जला के गंगा में बहाया, जिसके बाद इस मकान का अमन बहाल हुआ। इस वाक़े का जिक्र मुमताज मुफ्ती ने अपनी किताब अलख नगरी में निहायत अकीदत के साथ किया है। लिखते हैं कि जब शहाब ने मुझे ये वाक़या सुनाया तो मैंने कहा, शहाब साहब, जाहिर है ये कहानी हॉन्टेड हाउस की नहीं, ये कहानी तो खैर शर की जंग मालूम होती है। एक तरफ हिंदू जादूगर थे और दूसरी तरफ खैर की ताकतें थीं। शहाब ने कहा, शायद ऐसा ही हो। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि शहाब ने इस वाक़े को खैर शर की जंग की शक्ल इसलिए न दी क्योंकि वो डरता था कि लोग पूछेंगे कि खैर की ताकतों ने कुदरतुल्लाह का साथ क्यों दिया, और इस बात से शहाब के बुजुर्ग होने का भेद खुलने का खतरा था। फिर मुमताज मुफ्ती बताते हैं कि इस हॉन्टेड हाउस के वाकयात शहाब के भाई हबीब और उनके मरहूम भाई की बेवा हैडी ने भी देखे थे। हैडी एक जर्मन लेडी थी, लेकिन इन वाकयात का हैडी पर इस कदर शिद्दत से असर हुआ कि वो रूहानी दुनिया की कायल हो गईं। कलाम की अजमत उन पर इस शिद्दत से आश्कार हुई कि वो आबदा बन गईं। आज भी हैडी भाभी हबीब के घर में रहती हैं और उनका शगल सिर्फ और सिर्फ इबादत है। अलख नगरी में तो मुमताज मुफ्ती बिमला की जिन्नाती कहानी की तस्दीक करते हैं, लेकिन अब अगली बात सुनिए। अपनी वफात से कुछ अरसा कबल मुमताज मुफ्ती ने मशहूर जर्नलिस्ट जावेद चौधरी को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में मुमताज मुफ्ती ने बिमला कुमारी वाली सारी कहानी को झूठ करार दिया। कहते हैं, मैं बिमला कुमारी की रूह वाले बाब को हकीकत तस्लीम करने पर कभी तैयार नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि आप ग्रामोफोन पर कलिमा शरीफ लिख कर रखें तो सहगल की आवाज आना शुरू हो जाए। यहां मौलवी हजरात भूत बंगलों में पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, लेकिन भूत अपना ठिकाना नहीं बदलते। जावेद चौधरी का यह इंटरव्यू 9 मई 1994 को रोजनामा पाकिस्तान में शाया हुआ। इस इंटरव्यू में मुमताज मुफ्ती ने वो बातें की कि बकौल जावेद चौधरी उन्होंने अपनी सारी फिलॉसफी बदल दी और अपने दोस्तों का चेहरा ही बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि अशफाक के सारे बाबे फ्रॉड हैं, कहानियां हैं। कुदरतुल्लाह शहाब में बहुत सी खराबियां थीं। वो एक यस मैन था, एहसास कमतरी का शिकार था। शहाब नामे में बिमला की रूह वाली सारी जिन्नाती कहानी झूठ थी और आखिरी चैप्टर जिसमें शहाब ने अपने रूहानी सफर का जिक्र किया वो भी आधा सच है। खुद अपने बारे में बताया कि मेरा सारा अदब सिफारिशी है और मैं अंदर से मुसलमान हूं, लेकिन जाहिरन इस्लाम पर अमल नहीं कर सकता। इस इंटरव्यू से और खास तौर से कुदरतुल्लाह शहाब के हवाले से जो बातें मुफ्ती ने कही, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ग्रुप का सूफी लिटरेचर
किस लेवल का फ्रॉड था। ये वही शहाब हैं जिनके बारे में अपनी किताब लब्बैक में मुफ्ती ने लिखा था कि एक दिन मस्जिद नबवी में वो और कुदरतुल्लाह शहाब नमाज के लिए एक सफ में साथ साथ खड़े थे कि एक शख्स जबरदस्ती उनके दरमियान में आकर खड़े हो गए। नमाज के बाद उन हजरत ने बाजू फैला के दाएं बाएं बैठे मुफ्ती और शहाब को अपने करीब खींच लिया, कभी उनका हाथ पकड़ते, कभी उनकी कमर थपथपाते और यूं 15-20 मिनट उनके साथ बैठे रहे और फिर पुरजोश मुसाफा करके रुखसत हो गए। और वो शख्सियत कौन थे? शुहदाए बदर में से एक सहाबी। याद रहे कि ये किसी ख्वाब की बात नहीं हो रही, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस लेवल का झूठ है। लेकिन उस वक्त के पाकिस्तान में लोग इस तरह के दावों पर सवाल नहीं करते थे, बल्कि यकीन करते थे। अपने इंटरव्यू में जावेद चौधरी ने मुमताज मुफ्ती से एक सवाल पूछा कि क्या आज की दुनिया में कोई सच्चा बुजुर्ग है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, प्रोफेसर रफीक अख्तर सच्चा बुजुर्ग है और अगला जमाना प्रोफेसर का है और बाकी सारे बुजुर्ग पीछे रह जाएंगे। अब सुनिए कि प्रोफेसर रफीक अख्तर मुमताज मुफ्ती और अशफाक अहमद के बारे में क्या कहते हैं। ये जो अभी मतलब अशफाक अहमद खान और बाबे और ये सारा होक्स है। इसका मुमताज मुफ्ती जब पहली मर्तबा मेरे पास आए तो मैंने उन्हें कहा आपने बहुत सारी बातें गलत लिखी हुई हैं और आपने जो वाकयात लिखे हुए हैं तसव्वुफ के नाम पर वो गलत हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा यस यू आर राइट, ये मैंने लोगों को एक्साइट करने के लिए किया, जैसे काला शक्काकू का बाबा ये वो। मुफ्ती वाज मोर ऑनेस्ट देन ऑल ऑफ देम। उन्होंने न सिर्फ गलती तस्लीम की बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि प्रोफेसर साहब अनलेस समबडी हैज ए विजन, उसको कैसे पता लग सकता है कि ये सब कहानी है जो मैंने लिखी है। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि आप एक गलत कहानी पे उस्तवार करके अगर लोगों को खुदा की तरफ ले जाना चाहते हो और लोगों को पता लग गया कि इब्तदाई किस्सा ही गलत है, झूठा है, तो फिर लोगों को उस खुदा का क्या एतबार है। एक जी शऊर इंसान के लिए ये समझना मुश्किल नहीं कि कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज मुफ्ती और अशफाक अहमद का रूहानी निजाम और उनके बाबे महज झूठ का पलंदा हैं। इन बातों की नौयत से ही जाहिर हो जाता है कि ये बातें झूठ के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती। ऐसा फाश झूठ कि वो उलमा भी इन कहानियों को डिफेंड नहीं कर सकते जो औलिया की करामात पर ईमान रखने को मजहबी फरीजा करार देते हैं। तो असल सवाल ये नहीं कि ये बातें सच हैं या झूठ, असल सवाल कुछ और है। वो सवाल ये है कि ऐसा फाश झूठ लिखने वाले लोग हमारे दानिश्वर कैसे बन गए? हमारे फहम में क्या कमी थी कि हम पाकिस्तानियों ने इन लोगों की बातों पर यकीन कर लिया? और क्यों आज भी बहुत से पाकिस्तानी इन बातों को सच मानते हैं? इस सवाल का जवाब है ऑब्सक्योरेंटिज्म। ऑब्सक्योरेंटिज्म का मतलब है जानबूझकर हकाइक छुपाना, असल तफसील बताने से गुरेज करना, लोगों को कंफ्यूज रखना, उन्हें उलझाए रखना, उन्हें यह बावर करवाना कि उनका जहन महदूद है और वो बड़ी बड़ी बातें समझने की अहलियत नहीं रखते, लिहाजा उन्हें अपनी अक्लें जानने वालों के कदमों में रख देनी चाहिए और चुपचाप उनका हुक्म मानना चाहिए। और इस सब के पीछे का मकसद ये होता है कि लोगों पर अपनी अथॉरिटी और अपना कंट्रोल बरकरार रखा जाए, उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखा जाए, उन्हें सवाल करने से रोक दिया जाए, क्योंकि सवाल करने से तब्दीली की राह हमवार होती है। उनके जहनों को इस तरह से बंद कर दिया जाए कि उन्हें सोचना गुनाह लगने लगे, वो अपनी ही सोचों से डरने लगे, क्योंकि सोचना स्टेटस को के लिए चैलेंज बन सकता है। वो ये मान लें कि उनकी जिंदगी के अंधेरे उनका मुकद्दर हैं, उनके बस में कुछ नहीं है। वो अपने मसीहा की राह देखें, अच्छे मुस्तकबिल का इंतजार करें, लेकिन उस वक्त तक खामोशी से हुक्म माने और फजल मसीह की तरह सजा भुगतते रहें। फजल मसीह एक क्रिश्चियन खाकरोब था जो बागे जिनाह में झाड़ू लगाता था। एक मर्तबा कुदरतुल्लाह शहाब, अशफाक अहमद और मुमताज मुफ्ती बागे जिनाह की कैंटीन में बैठे थे तो वहां फजल मसीह से उनकी बातचीत होने लगी। फजल मसीह उन्हें बताता है कि वो खाकरोब नहीं था, लेकिन एक गलती की पादाश में उसके मुर्शद ने उसे सजा दी कि 3 साल गंदगी उठाओ और 3 साल झाड़ू लगाओ। और फजल मसीह ने यह सजा कबूल की, क्योंकि उसका मानना था कि हुक्म तो हुक्म होता है, इसमें ना नहीं होता। किस लिए नहीं होता? पूछना नहीं होता। पूछना हुज्जत है। जो मुर्शद मानकर हुक्म ना माने वो मर्द नहीं, चूड़ा है। और ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त एक है, हुक्म माने, आगे से बोलना नहीं,
पूछना नहीं, बस सर झुका देना है। जिस कौम ने हुक्म माना वो चढ़ गई, ना माना तो रुल गई। और फिर मुमताज मुफ्ती सोचने लगते हैं कि फजल मसीह कितना बड़ा आदमी है जो जाने बगैर मानने की हिम्मत रखता है। हकीकत यह है कि फजल मसीह गुलाम जहनियत का आदमी है। वो पूछने से डरता है, वो सोचने से डरता है, और उसका मुर्शद एक चालाक आदमी है।